बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको वेक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे जिनसे मिलते जुलते सवाल, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके नीट के एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। नेक्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. दो फोर्सेस हैं, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, रिजल्टेंट का वैल्यू दिया है, एंगल दिया है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए, मैं इसको आपको दो मेथड से कराऊंगा। एक मेथड में आप इसे बेसिक समझेंगे पहले क्या है, उसके बाद इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। देखिए, द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस 3:5, तो let the force F1 is equals to F1 is equals to 3x and F2 is equals to 5x. Resultant R is equals to 28 and the value of theta is 60. So we have, according to the formula, R is equals to root F1 square plus F2 square plus twice F1 F2 cos of theta, that is equals to F1 9x square plus 25x square plus 2 3x 5x and cos 60. The value of cos 60 is 1/2. So in this case cos 60 is cancelled with this 2. So we have 9x square, 25x square, 5 3 are 15x square, 15 plus 25 49, 49x square, which gives 7x, and the resultant is 28. So we have 28 is equals to 7x, implies that the value of x is 4. So the forces are F1 is equals to 3 into 4, which is 12 Newton, and F2 is equals to 5 into 4, which is 20 Newton. That is, the answers are 12 and 20. तो बच्चों, इसमें ये भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आपको दिया 15 25, आपको दिया 20 60, आपको दिया 12 20, आपको दिया 3 9। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, द रेशियो इज गिवन, द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस गिवन। कितना रेशियो दिया है आपको? देखिए, टू फोर्सेस का ये दिया हुआ है कि 3:5। ठीक है, चेक इन सारे ऑप्शंस में से किस वाले ऑप्शन का रेशियो आपका 3:5 है। तो देखिए 15 25 इसका रेशियो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसका 15 और 25 इसका रेशियो, 5 3 15, 5 25, आ गया 3/5। 20 60 1/3, 12 20 12 20 3 5, देखिए 12 और 20, तो 4 3 12, 4 5 20, अगेन इट इज 3/5, 9 3 1:3। तो दीज टू ऑप्शंस, दिस वन एंड दिस वन, इस तरह से आप सॉर्ट आउट करेंगे। ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा अगर है जिसके अंदर उनका रेशियो 3:5 है, तो बिना कुछ सॉल्व किए आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर एक से ज़्यादा है तो गो विद दिस मेथड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर a is equals to 2i plus 2j with x axis? तो with x axis it means like this is x axis, this is a vector a, तो angle made by this is say theta, then tan theta is equals to y component upon x component, that is ay upon ax, which is equals to the value of ay is 2, ax is also 2. देखिए, this is ax, this is ay, तो 2 to 2 1, तो tan theta, that is theta is equals to 45. So it's very simple. The angle of vector a made with the x-axis is equals to 45 degree. Simple. You have to divide both the components, y component and x component. Now the next problem is,
a unit vector is represented by ai plus bj plus ck if the values of a and b are 0.6 and 0.8 respectively. Find the value of c. So it is also one of the very simple question. This is the case of unit vector. Unit vector means a vector having magnitude unity. It means if this is a unit vector, then the magnitude of this is equals to unity, that is a square plus b square plus c square, the whole root is equals to 1, or after squaring we have a square plus b square plus c square is equals to 1. Find the value of c, that is c square is equals to 1 minus a square minus b square. The value of a is 0.6, the value of b is 0.8. So 0.6 square 0.36, 0.8 square 0.64. So we have 1 minus 0.36 minus 0.64. It is 1 minus 1, which is equals to 0. Hence the value of c is equals to 0. So it is a unit vector when the value of c is equals to 0. कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1. आफ्टर स्क्वायरिंग वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन करते हैं बच्चों. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग particle at any time t are given by x is equals to ct square, y is equal to bt square. So dx upon dt is equals to 2ct dy upon dt 2bt. The dx upon dt means this is the velocity along x-axis, which is vx, 2ct, dy dt velocity along y-axis, which is vy, 2bt, and the speed of the particle given by v is equal to root of vx square plus vy square, that is equals to root 2ct the whole square plus 2bt the whole square, which gives 2t common, that is c square plus b square. So we have a option, it is the correct ones. Next, resultant of two vectors of equal magnitude a is, बहुत important question है. देखिए, resultant of two vectors of equal magnitude a is, सवाल में कुछ दिया ही नहीं है. रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए इज, यानी दो वेक्टर्स है. सपोज हमारे पास से वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू a एंड वेक्टर b1 इज आल्सो इक्वल्स टू b, एंड a एंड b बोथ आर इक्वल. तो से a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल्स टू a. दिस टाइप ऑफ टू वेक्टर्स वी हैव a1 एंड b1 एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड a. अब we have four options, this. So how we can find out that which option is correct for only this type of data? So say, as we know that the resultant maximum for two vector is a plus b and minimum resultant is equals to a minus b. So if two vectors are equal a and a, so it is 2a, and it is 0. तो जो रिजल्टेंट होगा उनकी वैल्यू इनके बीच में होगी 0 और 2a. The 2a is the maximum value and the minimum value is 0. So in the options we have 2a, but at angle 120. The 2a is maximum, it is only when theta is equal to 20. It means this option is wrong. ये ऑप्शन गलत हो गया. अब रूट 2a at 90 degree a square plus b square, resultant a square plus a square 90 degree, that is a root 2. It means resultant a root 2 होगा when the angle between these two is 90. It means this option is correct. ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, रूट 3a at 60 degree. तो रूट 3a, it means a square plus a square
प्लस 2a² cos 60 डिग्री, cos 60 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका फिर से कितना आएगा, a√3. It means this option is also correct. A option is also correct. Next, D option, a at 120, a at 180 means this one, this case, when theta is equals to 180, then if we have two vectors are equal in magnitude, then the resultant is equals to 0. It means this option is wrong. तो हमारे पास ये दो ऑप्शन सही हुए, √3a at 60 डिग्री और √2a at 90 डिग्री. अब बोलता है वो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए इज. तो अब ऑप्शंस को देख के आंसर को चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है. क्वेश्चन में केवल आपको दिया है कि दो वेक्टर्स हैं जो कि इक्वल हैं और उनका रिजल्टेंट आपको बताना है कितना है. तो रिजल्टेंट इन चारों में से कोई एक है, ये और ये. अब जैसे मैंने आपको बताया आर मैक्सिमम और आर मिनिमम आप लोग जानते हैं, यानी कि वैल्यू 2a और 0 के बीच लाया करेगी. ठीक है, तो अब आपका वैल्यू मान लीजिए आपसे कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज 3a 4a 5a, तो वो अपने आप ही ऑप्शंस गड़बड़ हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2a हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a is perpendicular to b. देखिए, it is one of the question which is based on the dot product, because we know that a dot b is equals to ab cos theta. So if the value of theta is 90, then it will be 0. So a dot b is equals to 0. It means if we have the dot product of two given vectors is equal to 0, then they are perpendicular to each other. Yeah, once in a while we can say that these two are orthogonal vectors also. So 2i plus aj or plus k, and the next one is 4i minus 2j minus 2k, both are perpendicular to each other. It means the dot product of these two, the a dot b is equals to 0. तो a वेक्टर 2i 4j, तो 2 into 4 दोनों i के कोफिशिएंट्स प्लस j के a और माइनस 2 प्लस k के कोफिशिएंट्स 1 और माइनस 2 is equal to 0. So we have 4 2s are 8 minus 2a minus 2 is equals to 0. तो minus 2a is equals to minus 6, minus से minus cancel out, तो a is equal to 2 3 is 6. So we have the value of a is 3. So these two are perpendicular to each other when the value of a is 3. a का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो ये हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे. नेक्स्ट, it is also based on dot product. A vector of magnitude 100 Newton is inclined at an angle of 30 degree to another vector of magnitude 50 Newton. Calculate the magnitude of dot product and cross product of two vectors. देखिए, this is say a vector of magnitude 100 Newton like this is inclined at an angle of 30 degree. ये अगर 30 डिग्री है तो फिर आप इसको 30 डिग्री अगर है तो आप इसको ऐसे करो, ये एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया 100 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री. ठीक है भाई. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनदर वेक्टर मैग्नीट्यूड टू अनदर वेक्टर मैग्नीट्यूड 50, यानी कि ये जो वेक्टर है ये वाला यहाँ पे, इसको आप कह दो 50 न्यूटन. ये हो गया. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो बहुत सिंपल है, एक वेक्टर 100, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50, एंगल 30, तो a डॉट b इज इक्वल्स टू a b cos theta, which is 100, 50 and cos 30, that is 5,000 cos 30 √3 by 2, तो it is 2 2s are 4, 2 5s are 10, इतना √3 न्यूटन. सिंपल. क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, दिस इज a b sin थीटा. देखिए,
कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि a क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ईटा कैप होता है। तो क्वेश्चन में a और b दिया है, थीटा दिया है, ये वैल्यू कहाँ से लाए? तो जहाँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दैट इज दिस, और इन दिस केस द वैल्यू ऑफ ईटा कैप इज 1 बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर। तो इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दैट इज 100 into 50 और sin 30 1/2, तो 50 into 50 which is 2500 न्यूटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगेन mod of a is 2, mod of b is 5 and a cross b 8, a dot b। अब a cross b means a cross b का mod, दैट इज a क्रॉस b mod इज इक्वल टू होता है a b साइन थीटा। तो द वैल्यू ऑफ दिस इज गिव 8, mod a टू इतना b इतना, तो a डॉट b दिस इज a b cos थीटा। तो a डॉट b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अब a b साइन थीटा इज इक्वल टू 8 है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 8 अपॉन ए बी। तो 8, ए कितना है 2, बी कितना है 5, 10, तो ये हो गया 8 अपॉन 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 4/5। सो वी हैव, इफ इट इज थीटा like this, so this is 3 and the value of cos theta is 3/5. So in this case the value of a is 2, the value of b is 5 and cos theta is 3/5. 5 cancel out, 3 2 are 6, तो a dot b is equals to 6। देखिए यहाँ थोड़ा सा बच्चा परेशान हो जाता है कभी कभी कि a क्रॉस b दिया है, a डॉट b पूछ रहा है, a डॉट b a b cos थीटा होता है, a और b के मैग्नीट्यूड भी दिए हैं, तो इसका मतलब आपको cos थीटा निकालना है। और cos थीटा कहाँ से निकालेंगे? a क्रॉस b मॉड की वैल्यू से, तो a b साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा, उससे आप cos निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कुछ बच्चे, अगर cos की वैल्यू चाहे तो, कि cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स को यूज़ ना करना चाहें आप, तो ये भी कर सकते हो। तो 1 माइनस 4 4 ज़ा 16, 25, एलसीएम 25, 9/25, तो इट इज़ इक्वल्स टू 3/5, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू बच्चों।